ओके सर, स्टार्ट है सर। आप सबने स्टार्ट कर दिया है, खोल दिया अपने पास। ओके जी, मीडिया डेवलपमेंट थ्योरी वी आर टॉकिंग। द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे is civic journalism, and in civic journalism today the main objective and the purpose of this lecture is that to understand, have an inbuilt understanding of the different theories that are related to social media, that are related to media itself, and that are related to mass communication basically. So the first theory that we will be talking about is the development media theory. The development media theory is a theory of media and mass communication, and it is a theory that is the fact of a societies undergoing the transitions. We will be talking about the different goals of this theory, and the foremost important goal of this theory is that the primacy of national development task. So what do we mean by national development task? The national development task is about your priorities being a media and communication journalist, or being a journalist. The first and the foremost responsibility of a journalist is that you have to keep focusing on the national development issues, national development policies, and national development characteristics that are happening in our daily life. What role you can play for a country, for the betterment of your society, and the role that you can play for the betterment of society is very essential for you. And the second one is that pursuit of cultural and informational autonomy, means the culture that you are living in, or the society that is in a culture, you have to show your own culture. You are supposed to highlight the cultural values, highlight the cultural problems, highlight the cultural issues, to means talk about cultural problems that can be beneficial for the improvement, and secondly to talk about the values of society and the culture of society, so that there could be a comprehensive analysis of culture. Apart from that, you have to cover also the cultural stories, where you can cover your own culture, you can cover your own foods, you can culture the way of living life that you actually live in a society. And the third one is support for democracy. Democracy has become an essential part of almost every country. The democratic country, the world today is known as a democratic country. So mainly, there are many countries in the world, but the majority of countries are means depending on democracy, or they say themselves the democratic country. And democratic country is the beauty of any country, you can say, where democracy survive, and democracy is the modernist, you can say, is the modern way of government. And every country is claiming that we are a democratic country. However, there are other countries that do not say that, but however many countries are of a view that democracy is the best form of government in today's world, and it has proved yet. And democracy, after democracy, you know that media is the fourth pillar of your state. Media is the fourth pillar of means the country you are living in. So after the democracy, there comes the media itself. So you are going to support for the democracy. What is democracy? Democracy is by the people, for the people. It is the government of the people basically. So that work for the betterment of people and work for the people, and people are chosen by the means elected people are chosen by the people or by the common man. जब उनको सिलेक्ट करते हैं, आफ्टर सेलेक्टिंग देम, वो आपके दे कम इन अ गवर्नमेंट, एंड they are decision maker for you, they are opinion leader for you, and they become leaders for you. They decide many things with your permission. In that, what happened, sir? Everything is fine? Okay जी. So support for democracy also means that you are going to support democracy, and you are going to talk about the freedom, because in democracy there is a concept of freedom. There is a concept of freedom among the nation, and there is a concept of freedom that you can share each and everything, and you can take the decisions. You have the power, and the power is given by the political leaders by you. This is the third one. Solidarity with the developing countries, with other developing countries. Now you know there are different categories of country. Countries जो होती हैं वो different categories में हैं. Different categories countries मतलब ये है कि कुछ countries आपको पता है developed हैं,
कुछ डेवलपिंग हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं वो अंडर डेवलपिंग होती है। अब अगर तो आपकी कंट्री जो है वो डेवलप्ड है तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज के वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देम, ठीक है। जिस तरह से यूएस है, यूके है, ये क्या करते हैं ये सारी कंट्रीज, या फिर यूएनओ है, ये सारी कंट्रीज मिलके बेसिकली दूसरी कंट्रीज के हेल्प आउट करते हैं कि उनको हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं बाय द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, बाय द टेक्नोलॉजी, बाय मीडिया, हेल्प ऑफ मीडिया। के यू सी के देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कि इफ यू are capable enough, you have many of the resources, you can support someone else. You have to show the solidarity with others, कि आपको दूसरों की सपोर्ट भी करनी है। ये भी इसमें बड़ा अहम कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे इसका मेनली ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी मीडिया ने अभी उतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना इंटरनेशनल मीडिया ने डेवलपमेंट किया है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट्स, जो फॉरेन मीडिया के कॉन्सेप्ट्स हैं, हाउ कैन वी अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स कैन बी अप्लाइड इन आवर कंट्री, एंड किस तरह से मजीद हम मीडिया को, मीडिया इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया कंटेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वी नीड द हेल्प ऑफ दैट। जैसे कि CNN है, BBC है, ये सारे वो इदारे हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक इदारे हैं, और ये इदारे क्या करते हैं कि लोगों को, या डेवलपिंग कंट्री होती हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, तो फिर उनको अपने पास बुला के फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सोसाइटी के लिए एक बेहतर रोल प्ले कर सकें या एक बेहतर जर्नलिस्ट बन सकें, इंटरनेशनली अपने आप को एटलीस्ट डिसेमिनेट कर सकें, अपने मैसेजेस को डिसेमिनेट कर सकें। देन दिस कम्स advocates the media support for an existing political regime and its effort to bring about national economic development. You know कि national economic development is also a part of nation's development, कि you have to show the policies, economic crisis जिस तरह से हमारे पास है, कि क्या हमारी जो पॉलिसीज हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं, क्या वो कंट्री की बेहतरी के लिए हैं, और व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट आर द सम ऑफ गुड डिसीजंस मेड बाय गवर्नमेंट, व्हाट आर द सम ऑफ बैड डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट, कौन से अच्छे डिसीजन गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है या कौन से अच्छे डिसीजन नहीं है। तो क्रिटिसाइज ऑन द वन साइड आपके पास ये है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ऑन द अदर साइड आपको पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट करना है कि पॉजिटिव चीजें ये हो रही हैं, जिस तरह से कि यू हैपन टू सी के डॉलर की रकम जिस तरह से बढ़ती हुई जा रही है, कभी कभी कम होती है, या कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें हमें फायदा भी होता है, या सिर्फ नेगेटिवली आपको दिखाई देता है कि मीडिया ओनली क्रिटिसाइज करता ही नजर आता है। कि ऑलवेज देयर इज नॉट नीड फॉर द क्रिटिसिज्म, इट्स नॉट मैंडेटरी कि यू ऑलवेज क्रिटिसाइज, इट इज मैंडेटरी कि समटाइम्स यू हैव टू means present something, a positive image of your country, कि पॉजिटिव जो आपकी पॉलिसीज हैं उनको भी आप शो ऑफ कर सकते हैं, मींस वो भी दिखा सकते हैं कि आपके पास पॉजिटिव कौन सी हैं। अंडरस्टैंड जी। बाय सपोर्टिंग गवर्नमेंट डेवलपमेंट एफर्ट्स, मीडिया एड सोसाइटी एट लार्ज। जब मीडिया ऐसे प्रोग्राम्स जनरेट करती है, ऐसा कंटेंट क्रिएट करती है, तो उससे कहीं ना कहीं अवाम के अंदर एक स्पिरिट आता है, एक अवेयरनेस आती है, और पीपल बिकम मोर अवेयर अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ कंट्री। तो उनको एक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, इकोनॉमिक नॉलेज भी होती है, डेवलपमेंट की नॉलेज भी होती है, एजुकेशन नॉलेज, एक अवेयरनेस का जो है बहुत ही अहम किरदार मीडिया प्ले कर सकती है आपकी डेवलपमेंट के लिए, कि सोसाइटी के लिए किस तरह से डेवलपमेंट कर सकती है मीडिया। This theory recognizes the need of some form of government interventions into the operation of media. जहां पे इस तरह नहीं है कि डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी में ये है कि ये सिर्फ मीडिया जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दैट के जो नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी टॉक अबाउट के व्हाट आर द मींस प्रिवेंटिंग एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, व्हाट आर द डिफरेंट जो कि प्रिवेंट कर रहे होते हैं, जो कि मीडिया की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, बट मीडिया कैन नॉट प्ले द पॉजिटिव रोल, मीडिया कैन नॉट शो व्हाट इट नीडेड टू बी शोन। जो दिखाया जाता है या जो दिखाना चाहिए, समटाइम उन चीजों के ऊपर बैन होता है, एंड मीडिया कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है, बिकॉज द मीडिया कंट्रोल्स, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिया को कंट्रोल करती है। समहाउ पेमरा इज कंट्रोल्ड, यू नो के डिफरेंट जो आपके इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो कंट्रोल करते हैं बहुत हद तक आपके कंटेंट को, व्हाट इज नीडेड टू बी डिसेमिनेटेड टू द पब्लिक एंड व्हाट इज नॉट नीडेड टू बी डिसेमिनेटेड टू द पब्लिक।
फॉर सपोज अब जिस तरह के मीन्स देयर इज काइंड ऑफ बैन ऑन इमरान खान स्पीच और देयर आर सर्टेन अदर you can say के policies that are being made by this government which is currently working in our country. However, what we need to do now is that we have to show both sides of the society. On the one hand, if the government is doing something better, then show it. You can criticize on it. So to conclude the above definition or to conclude this theory is that के ये एक मीडिया डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि डेवलपमेंट ऑफ मीडिया के बारे में बात करती है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करती है, सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में बात करती है कि आपको बीइंग अ मीडिया पर्सन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, क्योंकि यू नो के जो डेमोक्रेसी है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसको सपोर्ट करना है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, सोसाइटी की मेनली आपकी डेवलपमेंट किसकी है, आपको सोसाइटी की डेवलपमेंट करनी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको अपनी नेशनल पॉलिसीज की डेवलपमेंट करनी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको वो चीजें शो करनी है कि मजीद इन चीजों को कैसे बेहतर किया जाता है, जैसे इसका वर्ड ही आप समझ सकते हैं डेवलपमेंट, तरक्की की तरफ जाना। ठीक है कि मीडिया के जरिए आप किस तरह से तरक्की कर सकते हैं या मीडिया किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है कि तरक्की करने में, एक मुल्क की तरक्की करने में, इंटरनेशनली एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप करने में, नेशनली प्रोग्रेस करने में, लोगों को अवेयरनेस देने में। सो ये ऑल द एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दैट थ्योरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर इज इट? एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क। ओके जी, नेक्स्ट वन इज दैट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी। सो it is by its name you can understand the democratic participant theory was proponent by in the recognition of new media development and increasing criticism of dominance of main mass media by private or public monopolies. Now you know कि जो इंटरनेशनल मीडिया है आपकी वो सारी एक कंट्रोल्ड मीडिया है, वो एक मोनोपोलाइज मीडिया है, मोनोपोलीज है। मोनोपोलीज से मतलब है जो बड़े बड़े आपके इदारे हैं वो ऑल यूर यू कैन से कि जो बड़े बड़े आपके इदारे हैं वो मोनोपोलीज है। मोनोपोलीज से मतलब ये होता है कि व्हाट दे डू कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है मीडिया की, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं मीडिया के, वो कहीं ना कहीं आर इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, वो कहीं ना कहीं चंद लोगों के हाथ में होते हैं और वो ही उनको मैनेज करते हैं। अगर कोई छोटी कंपनी होती है वो ग्रो कर रही होती है तो फिर क्या कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं या मोनोपोली बना लेते हैं। मीन्स सारा कंट्रोल जो होता है वो फ्यू लोगों के पास होता है, डोमिनेंसी होती है उनकी ओवर अदर मीडिया। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, आप देखेंगे ना तो यू विल सी के जैसे कि देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज मीडिया की जो बड़ी बड़ी हैं, वेल्ट डिज्नी हो गया, ABC, इस तरह से कुछ और हैं जो 10 टॉप मीडिया इंडस्ट्रीज हैं या जैसे आप मीडिया कंग्लोमरेट्स कहते हैं, वो सारी कंट्रोल्ड होती हैं, वो सारी कंट्रोल फ्यू लोग करते हैं और मेनली वो सारा जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास है। आपका अमेरिका इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है, सारी मीडिया को, इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया है उनको मेनली जो कंट्रोल करती है वो है आपकी इंटरनेशनल मीडिया एंड USA। ठीक है, वही कंट्रोल करता है और किस हद तक UK भी कंट्रोल करता है। इनकी डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। अब इससे क्या होता है, जाहिर सी बात है, इससे ये होता है कि उनकी पॉलिसीज ही हाईलाइट होंगी, वो अपनी पॉलिसीज बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ हद तक तो आपको ये है कि फ्रीडम ऑफ मीडिया है, लेकिन कुछ आपको पता है कि इदारे की पॉलिसीज भी होती हैं, कुछ इदारे की पॉलिसीज होती हैं जिनके बगैर आप नहीं काम कर सकते, बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप जब उस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय होते हैं तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑन दी वन हैंड कुछ चीजें आप कर सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड यू कैन नॉट डू समथिंग इन दैट पर्सपेक्टिव्स। In 1960s onward, Calcutt had alternatives, grassroots media। अब grassroots media जब इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं तो मिनोरिटी की मीडिया मींस मिनोरिटी लोगों की बात बहुत कम होती है और ग्रास रूट लोगों की बात बहुत कम होती है। आपको एलाइट क्लास ज्यादा दिखाई देती है मीडिया में। ठीक है, बड़े बड़े लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। मींस छोटे लोगों के लिए वहां पे कोई प्लेस नहीं होती, आम पब्लिक के लिए कोई प्लेस नहीं होती, क्योंकि उनकी वो इंटरनेशनल मीडिया होती है। वहां पे इफ कोई अगर आपका मैं ये कहूँ कि एनालिस्ट भी आएगा तो वो बड़ा एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड होगा। ठीक है जी, उनको बुलाएंगे कि आम पब्लिक का व्यूज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट इन दैट मीडिया, क्योंकि उनके पास दे हैव द स्पेशलाइज्ड अदर एनालिस्ट जिनसे वो पूछ रहे होते हैं। तो फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होती है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही होती है और उसको भी हम समझ नहीं पाते इन दैट केस।
तो इसमें क्या होता है बेसिकली द राइट यूज ऑफ अ न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंटरेक्शन। अब देखें कि सोशल मीडिया है, इसका सोशल मीडिया ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दी है। सोशल मीडिया इज मीडिया इन द हैंड ऑफ एवरीवन, एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, एवरीबडी हैज़ अ सोशल मीडिया अकाउंट। और अब क्या है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज बन रही हैं, उसको भी कोशिश की जा रही है कि बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इट्स नॉट सो मच इजी कि उसको इतना जल्दी किया कर सके। लेकिन कंटेंट के ऊपर यू बीइंग अ मीडिया ग्रेजुएट आपको पता होगा कि बहुत सारी पॉलिसीज बन रही हैं मीडिया, जैसे लॉज, एथिक्स, मीन्स हर चीज़ कोई बंदा नहीं कर सकता। कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, कुछ फेसबुक की पॉलिसीज है, मजीद फेसबुक अपनी पॉलिसीज प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उनके ऊपर काम हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर समहाउ, देखिए कि किस तरह से मजीद इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है या फिर कंटेंट किस तरह से किया जाता है। द प्रैक्टिकल एक्सप्रेशंस ऑफ थ्योरी आर मेनली वेरीड इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड और अल्टरनेटिव प्रेस, community cable television, micromedia and rural setting, wall posters, media for a woman and ethnic minorities. The theory reflect of a market as a suitable institution form as well as the top-down professional provision and control. Democratic participant theory advocates media support for cultural pluralism at grassroots level. कि जो आपकी इंटरनेशनल मीडिया है उसको सिर्फ इंटरनेशनल चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे आके चीज़ें दिखानी चाहिए। ठीक है, उनको ठीक है यूएसए के प्रॉब्लम इश्यूज आप दिखाएं, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलपिंग नेशन हैं, उनके इश्यूज जो कल्चर है, प्लूरलिज्म कल्चर दिखाना चाहिए कि कोई एक कल्चर जिस तरह डोमिनेट कर रहा है सारी सोसाइटी को, जिस तरह डोमिनेट कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड को, उस एक कल्चर को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। उसमें एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक वैरायटी ऑफ कल्चर होनी चाहिए। जब वैरायटी ऑफ कल्चर होगी तो एवरीबडी वुड बी सेटिस्फाइड ऑफ दैट फ्रॉम दैट न्यूज। अभी तो ये होता है कि आपको एक ही कल्चर दिखाया जाता है, यूएस का कल्चर दिखाया जाता है या अदर कंट्रीज का दिखाया जाता है। जो हमारी प्रोमिनेंट मीडिया है वहाँ की उनकी रेटिंग्स बहुत हाई होती है, उनकी मूवीज आपकी बहुत मार्केट में या मीन्स दे मेड अ गुड प्रोग्रेस। सर आएंगे, सर आ जाए, सर बंद कर। आ जाए सर, नहीं आ जाए आप ले बाद जी जी। हाँ, तो अभी सर ने कहा आप ले लो, ठीक है, नहीं बस मैं बाद में करूँ। ठीक है सर, थैंक यू। आ जाए सर, आ दो भाई, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ अटेंडेंस, शफी